यशपाल जी वो वीडियो हमारे साथ हमें प्रस्तुत करते हैं, तब तक मैं आपको कुछ विशेष बातें रामचरितमानस के बारे में बताना चाहूंगी। रामचरितमानस का मतलब है लेक ऑफ डीड्स ऑफ राम। श्री राम जी के डिफरेंट डीड्स के बारे में ये बुक है। दिस बुक हैज बीन रिटन बाय तुलसीदास जी। इसमें 7 कांड दिए गए हैं, जिनका नाम है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग इसका एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो आज चौपाई हम देखने जा रहे हैं वो इसी रामचरितमानस का ही एक भाग है। तो मैं दोबारा अविनाश जी से ये दरखास्त करना चाहूंगी, अगर वो वीडियो प्रस्तुत कर पा रहे हैं। धन्यवाद अविनाश जी। मैं ये कामना करती हूँ कि दशरथ नंदन श्री राम जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। Now, I would like to call upon Miss Pallavi Singh, student of BCom Honors second year. She has recently scored 100 out of 100 marks in 2 subjects, namely Management Accounting and Managerial Personality Development. There can be no better occasion than today to express one's feelings towards her mentors, towards her gurus. So now I would like to welcome Pallavi. Pallavi, stage is yours. Thank you, ma'am. Guru is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Good evening, everyone. I am Pallavi Singh of BCom second year. I wish you all good health and positivity in this difficult times of pandemic. Guru Purnima is a spiritual celebration dedicated to acknowledging the contribution of gurus and teachers by the disciples. Guru or teacher is a person who is a key for the success of an individual. Teacher is considered as a polymorphic person who plays various roles in our life. They inspire us to pursue our dreams with great dedication and passion. Teachers provide selfless knowledge and help us to shape our lives. In Mahabharat, when Arjun was surrounded with distress and confusion and was seeking for answers, Lord Krishna, his guru in disguise, came to his rescue. Similarly, teachers are those guides who not only acquaint us with good education but also give us unforgettable lessons for life. The motto of our institution, Yogaha Karmasu Kaushalam, is a core message which Lord Krishna has conveyed to Arjun while explaining Karma Yoga in Bhagavad Gita. It means complete focus and dedication to action without any attachment to the ensuing result is the real key to living a fulfilling life as a true Karma Yogi. And we here at DSPSR are fortunate to have gurus who not only abide by it but have also embedded this valuable teaching effortlessly in students. Our Reverend Chairman, Professor BP Singh Sir, is a visionary leader. He keeps us both motivated and attached to our Indian culture. Our President, Professor Ajay Kumar Singh Sir, his personality and his aura makes him a role model for all the students. Our Director, Professor Dr. G.S. Popley Sir, is the driving force behind this affable environment of the college. Our Dean, Professor Seema Ma'am, is always cheerful and diligent towards her work. Our program coordinator, Dr. Pooja Sharma Ma'am, is considered to be one-stop solution for all the problems or the academic problems of the students, and along with other faculty members of the college, they make an extremely enthusiastic workforce who work towards our welfare and bring out the best in us. I would like to express my gratitude towards the faculty members under whose guidance we develop great understanding of subjects, and their selfless efforts yield exceptional academic results. I was quite ecstatic to know that I had scored full marks in management accounting and managerial personality development. This would not have been possible without the support of my teachers. Under the guidance of Ms. Shagun Bakshi ma'am
and Dr. Shipra Singh ma'am, who are my subject teachers and mentors, helped me to develop inclination towards the subjects. Their modus operandi of teaching the subject right from scratch has helped me in gaining complete knowledge and acing the examinations. I am parallelly pursuing company secretary course, in which the teachers and the management of DSPSR has always been supportive, and as a result, I have scored 91% in my third semester examination and also successfully cleared my CS foundation exams. In these difficult times of pandemic, when everyone took a backseat, the teachers became torch bearers of imparting knowledge. Thank you, teachers. You are truly an inspiration. We'll always be grateful to our teachers and our college for providing such an encouraging and supportive environment for overall development and professional growth of students. Thank you so much. Well, thank you so much, Pallavi, for such kind words. We are equally blessed and happy to have students like you. So now I would like to request Ms. Shruti Mittal to kindly come and share her self-composed poem. श्रुति मित्तल का नेचर बहुत सरल और चंचल है। वह सेकेंड ईयर बीकॉम की स्टूडेंट है। पढ़ाई के साथ साथ कविताओं का भी शौक रखती हैं। तो मैं अब श्रुति को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह स्वयं रचित कविता को प्रस्तुत करें। थैंक यू मैम। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आरे की तरह तराशा गुरु ने, जीवन को आसान बनाया गुरु ने। तुमने ही जीवन को राह दिखाई, तभी जीवन में सफलता आई। नमस्कार। तो इसी के साथ मैं आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कविता पसंद आएगी। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु शिष्य की परंपरा को हमको आज निभाना है। गुरु शिष्य की परंपरा को हमको आज निभाना है। गुरु हमेशा बड़ा रहेगा, बस ये याद दिलाना है, बस ये याद दिलाना है। गुरु शिष्य, ईश्वर बड़ा है हम सबसे, ईश्वर बड़ा है हम सबसे, ये गुरु ही हमें बताता है। ईश्वर बड़ा है हम सबसे, ये गुरु ही हमें बताता है। अर्जुन हम बन जाएं जब, अर्जुन हम बन जाएं तब गुरु द्रोण बन जाता है। अर्जुन हम बन जाएं तब गुरु द्रोण बन जाता है। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आज मैं नमन ये करती हूँ। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आज नमन मैं करती हूँ। सारे दुख सबके मिट जाएं, यही दुआ मैं करती हूँ, यही दुआ मैं करती हूँ। शिष्य बनी मैं जिस गुरु की, शिष्य बनी मैं जिस गुरु की, माना बस उसी का हाथ। शिष्य बनी मैं जिस गुरु की, उसका मान बढ़ाना है। तुम बस कविता का सार सुनो, ये जीवन में भी अपनाना है, ये जीवन में भी अपनाना है। आज बचाया है गिरने से, आज बचाया है गिरने से उन बेसहारों को उसने। आज बचाया है गिरने से उन बेसहारों को उसने, जिसने खुद अपने गुरु के सामने, जिसने खुद अपने गुरु के सामने उनके चरणों में शीश झुकाया था, उनके चरणों में शीश झुकाया था। जब जब आई कोई विपदा मुझ पर, जब जब आई कोई विपदा मुझ पर, बस गुरु का ही सहारा था। बिखर गई जब टूट कर मैं, बिखर गई जब टूट कर मैं, आपने ही संभाला था, आपने ही संभाला था। मिलाया था मुझको, मिलाया था मुझको जीवन की सच्चाई से, मिलाया था मुझको जीवन की सच्चाई से, जो हम कभी दूसरों से कह नहीं पाते थे, जो हम कभी दूसरों से कह नहीं पाते थे। सिखा दिया आज बोलना उनको, सिखा दिया आज बोलना उनको, जो भरी भीड़ के दूसरों के बोलने से घबराते थे, जो भरी भीड़ में दूसरों के बोलने से घबराते थे। भुला दिया उन सबको मैंने, भुला दिया उन सबको मैंने, जिसने मुझे गिराया था। भुला दिया उन सबको मैंने, जिसने मुझे गिराया था। याद रहा वो गुरु हमेशा, जिसने मुझे बचाया था, जिसने मुझे बचाया था। अब मैं कुछ शब्दों को प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जब भी डरा मैं हार से,
जब भी डरा मैं हार से तू साथ मेरे चल पड़ा, जब भी डरा मैं हार से तू साथ मेरे चल पड़ा, उसने पेड़ बन के छांव दी, तू छांव में ही चल पड़ा, तू छांव में ही चल पड़ा। जिंदगी में आएंगे कुछ जिंदगी से जाएंगे, जिंदगी में आएंगे कुछ जिंदगी से जाएंगे, तू गुरु का हाथ थाम ले बंदे, बस वो ही काम आएंगे, बस वो ही काम आएंगे। धन्यवाद। Well, thank you so much, श्रुति। बहुत खूबसूरत बात श्रुति ने हमारे साथ एक शेयर की है कि गुरु और शिष्य के रिश्ता हमेशा ही सेम रहता है। हम जितने भी बड़े हो जाएं, एक अच्छे गुरु का स्थान कोई और नहीं ले सकता। एक गुरु को हम जीवन भर नहीं भूल पाते हैं। So on this note, I would like to welcome now Miss Harshita Pandey ji. She is currently pursuing MSc in Microbiology. संगीत में बहुत रुचि रखती हैं, जिसके कारण अनेक मंचों पर अपने हुनर का प्रदर्शन कर चुकी हैं। तो आज हर्षिता जी हमारे सामने एक प्रसिद्ध भजन सत्यम शिवम सुंदरम पेश करने जा रही हैं। तो हर्षिता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप प्लीज अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर सकें। जी, मैं पहले शुभ संध्या और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। अभी एक बहुत ही प्यारा सा भजन मैं पेश करूंगी, आशा करती हूँ सभी को पसंद आएगा। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, देखो जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, रामावध में, रामावध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, एक साई। All of you, thanks.
हर्षिता जी, बहुत ही खूबसूरत गाना गाया आपने। आप पर स्वयं सरस्वती जी का आशीर्वाद है। We are blessed that you are here with us today. So now I would Thank you so like much, to ma'am. request Thank you so much. our pleasure, ma'am. So now I would like to request Mr. Ayush Thakur, student BCom second year, to kindly share his views. Ayush has been a very active student of NSS and college की और भी activities में he has been very actively participating. एक स्टूडेंट के जीवन में गुरु का जो महत्व है, जो स्थान है, इस पर आयुष आज अपने विचार व्यक्त करने जा रहे हैं। तो मैं आयुष को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आके अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, डीन मैम, सभी शिक्षक गणों और सहपाठियों को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं आयुष ठाकुर राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार DSPSR की तरफ से उपस्थित सभी गुरुजनों के चरणों में अपना वंदन अर्पित करता हूँ। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए कई स्थानों पर इस पर्व को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध ने सरनार्थ उत्तर प्रदेश में अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसी दिन भगवान शिव ने सप्तऋषि को योग का ज्ञान दिया और संसार के प्रथम गुरु बने। महान संत कबीरदास के गुरु के महत्व को इस तरह बताया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हैं तो मुझे गुरु के चरण पहले स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर का बोध कराया है। आज के दिन जिस प्रकार चंद्रमा अपने पूर्ण रोशनी से अंधकार भरी रात में उजाला लेकर आता है, ठीक उसी प्रकार गुरु अपने ज्ञान की रोशनी से अपने शिष्य के जीवन में उजाला और उज्जवल भविष्य लेकर आता है। इसलिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। इस संसार में मानव अवतार ईश्वर को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। अगर हम बात करें धर्म के मार्ग पर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने भी गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी से शिक्षा ग्रहण करी। श्री कृष्ण ने ऋषि शांतिपनि, नेमिनाथ, घोर अंगिरस और महर्षि वेदव्यास से शिक्षा ली। कौरव पांडव के गुरु गुरु द्रोणाचार्य थे और राजऋषि जनक के गुरु अष्टावक्र थे। वहीं स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण थे। शास्त्रों में माँ को इस संसार के प्रथम गुरु का स्थान दिया गया है। माँ ने जन्म दिया, भोजन करना सिखाया, चलना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, सब सिखाया। गुरु और माँ में यही अंतर है, माँ प्यार से, दुलार से, थपथपाते हुए सुलाती है, परंतु गुरु जो है प्यार से, दुलार से और कभी डांट से, कभी फटकार से अपने शिष्य को जगाता है। माँ जन्म देती है और गुरु जीवन देता है। गुरु के महत्व के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊपर स्थान प्राप्त है। शास्त्र वाक्य में गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों में स्वीकार किया गया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से प्रचलित है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि वह शिष्य को बनाते हैं, नवजीवन प्रदान करते हैं। गुरु विष्णु भी हैं क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरु साक्षात महेश भी हैं, वो शिष्य के सभी दोषों का संहार करते हैं। कबीर ने कहा, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात भगवान के रूठने पर गुरु की शरण रक्षा कर सकती है, परंतु गुरु के रूठने पर कहीं शरण मिलना संभव नहीं। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, तीन लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोई। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु शरीर नहीं, गुरु एक तत्व है, एक शक्ति है। गुरु एक
सच्चा शब्द है, गुरु एक सच्चा नाम है, गुरु एक भाव है, गुरु एक श्रद्धा है, गुरु समर्पण है, गुरु आपके व्यक्तित्व का परिचय है। कौन कब कैसे आपके लिए गुरु साबित हो या आपकी दृष्टि एवं मनोभाव पर निर्भर है। गुरु प्रार्थना से मिलता है, गुरु समर्पण से मिलता है, गुरु सेवा भाव से मिलता है, गुरु दृष्टा भाव से मिलता है। अंत में आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आयुष। अब मैं अगला शिवम पाल को आमंत्रित करना चाहूंगी। शिवम पाल बीबीए सेकंड ईयर के छात्र हैं। शिवम उन चुनिंदा बच्चों में से एक, वो अपने असूलों, आदर्शों और संस्कारों का व्याख्यान अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत खूबसूरती से करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उन्होंने एक कविता का रचन किया है। शिवम, मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि आप अपनी कविता पेश करें। शिवम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? यस मैम, वीडियो नहीं आ पा रही मैम पर। प्लीज शिवम। तो सभी चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर और अध्यापकगण सभी मित्रगणों को मैं शिवम पाल अपने हृदय की गहराइयों से उनका सादर आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आज के शुभ अवसर पर अपना प्रस्तुत उनके सामने प्रकट कर सकूं। तो जैसा कि आपने सुना, मुझसे पहले मेरे दो मित्रों ने बहुत ही सुंदर शब्दों में गुरु का वर्णन किया है। मैं आज आपको अपने इस कविता के माध्यम से उस गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। उससे पहले कबीर जी के दो छंद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पंडित यदि पढ़े गुनी मुए, गुरु बिन बिले ना ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द परमान कबीरा, सत्य शब्द परमान। कविता का प्रारंभ करता हूँ। इस जगत का तत्व ज्ञानी और नवतन मान है, जो स्वयं गुरु के रूप वस में ईश्वर का वरदान है, जो है नमन उनके ही चरणों की प्रज्वलित धूल भर को, जिसके धरने से महकती है समुचित मूल नर को। ज्ञान के सागर में हमको डुबकी जो लगवाता मन से, ध्यान धैर्य विनोद चेतन का समर्पण कर दे तन से। आज हम सब हैं मनाते दिवस उनकी शान ही में, बिन गुरु के शेष ना रहते हैं जीवन प्राण क्षण में। गुरु पूर्णिमा वंदन है चंदन हरियूं शिष्य के माथे, जिनके पूजन से है निखरते जन्मों जन्मों के जय गाथे। हुआ जन्म था इस दिन ही एक विवेक से अवतारी का, सुंदर शोभित नैनों वाला पुत्र था वो सत्यवती का। गंगा की धारा में जन्मा बहुविध बातों का ज्ञाता था, दिव्य दृष्टि और अंतर्यामी बहुमुख विद्या का दाता था। नाम था उसका कृष्ण द्रौपयन, जो बचपन से ही ध्यानी था। आषाढ़ पक्ष की पूर्णमासिका, जो वितनित अंतर ज्ञानी था। ब्रह्म विष्णु महेश सब साधी, संयोजित थे उसमें आदि। था प्रकाश का वह उजाला, जिसमें तेज था खूब निराला। ज्ञान ज्योति थी इतनी सुंदर, जगमगाती थी जो यूं निरंतर। ध्यान योग के थे अनुयायी, संतों के थे परम दिव्याई। महाभारत जिसने है रचाई, भले बुरे की समझ दिखाई। चारों वेदों के थे रचयिता, उपनिषदों के प्रखर कहैता। पांडु धृष्ट विदुर को जाया, हस्तिनापुर में आनंद लाया। महाप्रलय ब्रह्मास्त्र समर को, अपने तपोबल से रुकवाया। ध्यान तेज विवेक बोध से
वो ऋषि वेद व्यास कहलाया, है उनके कर्मों का सहारा, जीवित है गुरु प्रेम हमारा, और अनंत अंत आदि तक रहेगा मनुज शिष्य तुम्हारा। जय व्यास पूर्णिमा। और इस पूर्णिमा सर के शुभ अवसर पर दो शब्द आपसे कहना चाहूंगा। जैसे हम सभी आज के समाज में देखते हैं कि गुरुओं का मान तो वही है, लेकिन शिष्य का गुरु के प्रति नजरिया बदल गया है। आज वो सिर्फ उससे ज्ञान भर की बातें लेना चाहता है बस, उसके बाद उसको इज्जत रिस्पेक्ट बहुत कम, कहा जाए तो उस स्तर पे गिर गई है। तो उसी पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें सिर्फ गुरु को ज्ञान लेने के लिए नहीं, उसको इज्जत देने के लिए भी बनाना चाहिए। क्योंकि याद करिए, जब कर्ण को इतना महान व्यक्ति था, इतने ग्रंथ इतने कर्म उसने अच्छे किए, लेकिन एक गुरु के ही उसके उस खोट की वजह से कहाँ उसको अपनी अंतिम मृत्यु तक को देखना पड़ा था। तो मेरा यही भाव है कि गुरु पूर्णिमा का मतलब ये नहीं सिर्फ 1 घंटे के लिए एकत्र होकर के अपने गुरु का मन करना, अपने गुरु को इज्जत देना अपने मरने समय तक, यही हर एक शिष्य का भाव होना चाहिए। और यही मैं विनती करता हूँ सभी मेरे मित्रगण महसूस करें। जय श्री राम। धन्यवाद शिवम, आपने बहुत खूबसूरती से अपने विचार व्यक्त करे और आपने एक बहुत बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे व्याख्यान करने की कोशिश की है कि आज के समय में शायद एक शिष्य और एक गुरु के बीच का जो रिश्ता है शायद वो बदल चुका है और उसमें शायद और इम्प्रूवमेंट करने का समय आ गया है। तो अब मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी आश्री से। आश्री इज अगेन बीबीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। वो बहुत कीन ऑब्जर्वर है, एक्टिवली इन्वॉल्व है रोटरैक की एक्टिविटीज में, बहुत वोकल है आश्री अपने ओपिनियंस को लेके। एंड टुडे आल्सो शी हैज एग्रीड that she would express her views on the occasion of Guru Purnima. So I welcome you, Ashri. The stage is yours, beta. Thank you, ma'am. A very good afternoon to all my teachers and my loving friends who are present over here. I am Ashri Sharma and I am a first year BBA student and today on the auspicious occasion of Buddha Purnima, I am here to give a speech on the topic Buddha Purnima. So as we, ma'am, my internet connection is not working properly. Ashri, if there's any problem of bandwidth, beta, you can close your video. I guess that would help. Yes, ma'am. Just turn off your video and if you could start speaking. So as today on the auspicious occasion of Buddha Purnima, I am here to give a speech on Buddha Purnima. Buddha Purnima is also known as Buddha Jayanti as it's celebrated to mark the birth of Lord Buddha, who was also the 10th avatar of Lord Vishnu. It is celebrated all over the country, but mainly in Buddhism, as it is said that Lord Buddha gave the first teaching to their 5 disciplines at the famous Buddhist spot of Sarnath. It is celebrated as a holiday mostly over Asia. Lord Buddha is considered as the most superior guru in Buddhism. To mark his birth, it is celebrated. This is also a day to celebrate our teachers' learning and their availability to us students as in our own college. As this corona pandemic is going on, so we can't celebrate this day, but we'll surely celebrate this day once all this gets over. I would like to really thank all our teachers who are 24/7 available for the students whenever we are in need. And today, on the auspicious occasion of Buddha Purnima, as it's called Teachers Day also, it can be called as Teachers Day also. I would like to thank all the teachers who are present over here for making our lives work so smoothly and for always being there with us. Thank you. Well, thank you, Ashri, for expressing your views. Now, I would like to request Mr. Sapeksh. He is student of BBA second year. He is very creative student and expressive at the same point of time. Both of these qualities combined together has helped him to compose few lines for today's occasion. So, Sapeksh, stage is yours, beta. You can express your views on today's occasion. Thank you, and thank you so much. A very good evening to all of you on this occasion of Guru Purnima.
इस ओकेजन पे मैंने कुछ लाइन्स लिखी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो पहली शायरी में पेश करता हूँ कि वो अपने पंख काट कर हमें उड़ना सिखाते हैं। वो अपने पंख काट कर हमें उड़ना सिखाते हैं। वो ज्ञान के साथ साथ जीवन जीना सिखाते हैं। वो अपने पंख काट कर हमें उड़ना सिखाते हैं। वो हमें ज्ञान के साथ साथ जीवन जीना सिखाते हैं। नमन है उन गुरु को जो हमें जिंदगी के साथ साथ जो हमें जिंदगी त्याग कर हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। तो जो दूसरी शायरी है मेरी, वो कुछ इस पर है कि कई राह जिंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़े होते हैं जब दो राह होती है, मतलब एक सही एक गलत, बट हम हमेशा गलत राह की तरफ जाते हैं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होती है। बट थैंकफुली हमारे गुरु हमारे साथ होते हैं जो हमें सही राह की तरफ गाइड करते हैं। तो उसका मैंने कुछ लिखा है, उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगा कि गलत राह पे दौड़ना नहीं, सही राह पे ठोकर खाना सिखाया है। वो गुरु ही है जिन्होंने मुझे ज्ञान की गंगा में तैरना सिखाया है। मैं तो महज एक बीज था, मैं तो महज एक बीज था। वो गुरु ही है जिन्होंने मुझे अपनी मेहनत से सींच कर पेड़ बनाया है। और फिर तीसरी शायरी है मेरी, इसमें मैंने कुछ चाह और उसकी बात करी है कि जिंदगी में हम सफल हो जाते हैं बट गुरु को भूलना नहीं चाहिए, मैंने उसकी बात करी है। कि नहीं चाहा कुछ और, नहीं चाहा कुछ और, बस चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं। नहीं चाहा कुछ और उन्होंने, बस चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं। बस मांगते हैं कि जिंदगी के सफर में हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मुश्किलें तो लाख होंगी हर कदम पर हमारे, मुश्किलें तो लाख होंगी हर कदम पर हमारे, गुरु का हाथ जो रहा सर पर, मुश्किलें हंसते हंसते पार हो जाए। तो ये जो आखिरी शायरी है मेरी, ये उस पर है कि सिर्फ कॉलेज और स्कूल्स में ही टीचर्स नहीं होते हैं, हमारे हमारे पेरेंट्स सबसे पहले टीचर्स होते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, सब मतलब जो बेसिक है वो सिखाया। तो इन पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी एज अ गुरु कि शुक्रिया उन गुरु का जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, शुक्रिया उन गुरु का जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, गिरने दिया मुझे हर सफर में पर आखिरकार मुझे चलना सिखाया। मैं तो अनजान था अपनी राह से अपनी मंजिल से भी, मैं तो अनजान था अपनी राह से अपनी मंजिल से भी, वही तो है जिन्होंने मुझे इस जिंदगी से रूबरू कराया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मैम। Well, thank you so much, सापेक्ष। आप सब स्टूडेंट्स के ओपिनियंस, व्यूज जान के मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हम DSPSR की फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन फेल नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स को ये समझाने में कि एक गुरु शिष्य का क्या रिश्ता होता है। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पूजन बाटला जी से कि वो अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस दें। आज हम सब जिस स्थिति में हैं, COVID-19 की जो पेंडेमिक स्थिति है, हम सब घर में बंद हैं, रोज नई न्यूज सुनते हैं, नए आंकड़े देखते हैं कि इतने पेशेंट्स हो गए हैं, रोज शायद नए नए तरीकों का स्ट्रगल करते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से हम सब के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम सब उस एक शक्ति पे विश्वास रखें, उस शक्ति पे इतना विश्वास रखें कि हम सब इससे बाहर निकल पाएंगे। तो इन्हीं कुछ लाइनों पे पूजन मैम का नेक्स्ट परफॉर्मेंस है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पूजन मैम टू काइंडली प्रेजेंट हर सॉन्ग। थैंक यू सो मच मैम। मैं प्रस्तुति अपनी शुरू करती हूँ। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता।
हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी एक माँ, बारूद के धुएं तू ही बोल जाए कहाँ। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें सजा। क्या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें सजा। क्या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। इन्हें फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का, बन जाए गुलशन फिर से कांटों भरी है दुनिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। धन्यवाद। Well, thank you so much, Poojan ma'am. Now I would like to request Mrs. Shalini Tripathi ji, if she is here. Shalini ma'am, are you here? So I think she would be joining us a little late because there was some technical error at her end. So now I would like to request our Honorable Chairman Sir, Professor BP Singh ji, to please address the guests and the students. BP Singh sir का introduction देने का सौभाग्य मुझे आज मिला है, बट ये किसी इंट्रोडक्शन परिचय के मोहताज नहीं है, ये विश्व विख्यात गुरु हैं। हम सबका सौभाग्य है कि इनका आशीर्वाद हमारे सर पे है और हम सब किसी ना किसी फॉर्म में इनसे एसोसिएटेड हैं। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप प्लीज स्टूडेंट्स को एड्रेस कर सकें। Thank you, Dr. Simran, for inviting me to this address from my side. हम हमारी आवाज सेकंड इन कमांड है सर पूजन बाटला जी। हाँ पूजन हाँ सेकंड इन कमांड। तो ये जो सेकंड आपको था पल्लवी का था, जिनको आपने 100 मार्क्स दो विषय बहुत जो है ये तारीफ करने योग्य है। और उनकी जो बोलने की शैली है लिखने में तो 100 नंबर, लेकिन बोलने की भी शैली उनकी बहुत अच्छी है। और उससे ये साफ जाहिर है कि इनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट न केवल रिटन बल्कि जिसको कहते हैं कि वाक पटुता में भी उतने ही इनको जो है महारत हासिल है। और मैं चाहूंगा कि ये अपने और टीचर से जो है तीसरे नंबर पर परंपरा की और उदाहरण दिया द्रोणाचार्य का। इसका एक बहुत ही
डार्क पहलू जो है वो एक लग, आप लोगों को बोल दो, एक लव, एक जिसको आजकल मॉडर्न भाषा, एक तो कहते हैं सवर्ण, एक सवर्ण न हो, जिसको आप कहते हैं कैटेगरी। तो ये जो गुरु चला रहे थे अपना शिक्षण के लिए, वो राज जो थे प्रिंस, उन प्रिंस को लेने के लिए, लेकिन क्लब था, उसने संकल्प कर लिया था कि मैं इन्हीं से जो है शिक्षा लूंगा, और उनकी मूर्ति बना के, और यहाँ पे निर्माता है भगवान, एक एजेंट है, एक नुमाइंदा है, तो उस मूर्ति से ही उन्होंने ज्ञान व्यतीत चला, और उनके पास है तो बताया से मूर्ति के और सीखा के चला। तो उस कहा उन्होंने कि तो गुरु ने कहा लबने के क्या मांग। तो देखिए उस समय ये जो सवर्ण और सवर्णी वाली भावना इतनी प्रबल थी, उन्होंने कहा कि ये जो अंगूठा आपका है दाहिने हाथ का, इसको काट के हमें, इसके फिर अर्जुन बराबरी न कर धनुषधारी। तो ये डार्क शिक्षा गुरु मैंने इसलिए कहा कि ये चाहिए और इससे ज्ञान लेना चाहिए कि वर्तमान में ये परंपरा जो है, इस पे कुछ पुनः विचार की जरूरत है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो है अर्शिता पांडे चौथे नंबर पे आई और बहुत अच्छा सुंदर उनका लय है और बहुत प्रिय गाना हमें जो है सत्यम शिवम सुंदरम सुनाया। अर्शिता आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपको जो है इस गाने के लिए जो है बहुत अच्छा गाना आपने चुना। और भगवान शिव जो है तीनों ब्रह्म रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें तीनों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और वो सुंदर भी हैं, सत्य भी हैं और शिव पवित्र भी हैं। तो इस गाने को चुनने से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छे लय में आपने गाया। 5वें नंबर पे आयुष ठाकुर, अच्छी स्पीच थी आयुष की गुरु पे, और उसको अगर ये कोई एक पोएटिक फॉर्म दे पाते, कविता के रूप में, शायरी के रूप में या सूफी अंदाज में उसको कह पाते तो और भी अच्छा होता। 6ठे नंबर पे शिवम पाल, अच्छा स्वर है इनका, बहुत अच्छा स्वर है और कविता पाठ इन्होंने कबीर से शुरू किया था और अच्छा एक कविता पाठ किया, अच्छा स्वर में, इनको मैं बधाई देना चाहूंगा। 7वें नंबर पे आशीष शर्मा, फर्स्ट ईयर बीबीए, इनका प्रोजेइक कहते हैं प्रोज को, पोएटिक होता है, प्रोजेइक होता है। इनका प्रोजेइक प्रेजेंटेशन था और आपको मालूम है कि प्रोज और पोएट्री में बड़ा अंतर होता है। पोएट्री जो है दिल को छूती है, दिमाग को छूती है, आपके अंदर जो भावनाएं हैं उनको छूती है, और प्रोज जो होता है नीरस होता है। जैसे कोई बोलता चला जाए, कोई सुने नहीं, जैसे आजकल बहुत क्लासेस में यही होता है कि टीचर बोलता जाता है, स्टूडेंट सुनते नहीं, लिखते नहीं, उनको हर एक चीज रहता है कि इंटरनेट पर मिल जाएगा।
उसी तरह से अगर आप कोशिश करें कि अपना जो भी आपको है कहना उसको किसी पोएटिक फॉर्म में दे सकें, चाहे किसी फिल्म से ही उठा के दे सकें, कबीर से ही उठा के दे सकें, या रहीम से दे सकें, कहीं से भी, तो वो ज्यादा जो है दिल को छूता है। और ये शिवम पाल जो है, इन्होंने शायरी के रूप में अच्छा जो है गुरु का जो है क्या भूमिका होनी चाहिए उस पर प्रकाश डाला, और अच्छी शायरी थी, उनकी मैं तारीफ करता हूँ, बधाई करता हूँ। और ये शिवम पाल थे या ऋषभ पांडे थे, कौन था ये? सर ये सापेक्ष थे सर, सापेक्ष ने शायरी, सापेक्ष थे सर, उन्होंने शायरी की थी। SAPEX सापेक्ष। अच्छा, हमारे पास ये लिखा नहीं पाए, ये जो है रवि चंदेल। और लास्ट में पूजन बाटला का था कविता फेथ एंड होप एंड डिपेंडेंस ऑन गॉड, तो बहुत अच्छा था। इनका तो स्वर भी बहुत अच्छा है। और तारीफ की बात यह है कि फाइनेंस में होते हुए, फाइनेंस को मैं बड़ा नीरस मानता हूँ, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा फिगर इन्वॉल्व होते हैं, इतने रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं। आजकल से जब से फाइनेंशियल एनालिटिक्स आ गया है तब से तो और ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी इस तरह के जो है कविता इन्होंने उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया हम सबके सामने। पूजन, आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ में जो है वो डॉक्टर सिमरन के साथ जो है उनका सेकंड इन कमांड बन के जो है उनकी सहायता की, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। एक दो आदमी ड्रॉप कर गए, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या जो भी थी, शालिनी त्रिपाठी, तो हम सब सर शालिनी मैम ने ज्वाइन कर लिया है, हमें कर लिया, तो कुछ सुना दो। हाँ जी सर, तो आपकी सुनाओ, एड्रेस के बाद शालिनी मैम सुनाओ। हाँ कोई बात नहीं, हम 5-7 मिनट क्या 10 मिनट वेट कर लेंगे, सुनाओ। ओके ओके। So I would like to invite now Mrs. Shalini Tripathi ji. She is not only a wonderful housemaker, she is also a versatile teacher and a passionate singer. And today she would be gracing the occasion with her melodious voice. So ma'am, please, if you could unmute yourself and please perform. Shalini ma'am, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, thank you so much ma'am, thank you. सारे गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम, सादर आशीर्वाद मैं चाहती हूँ, लोगों से सादर प्रणाम करती हूँ। और अपने चेयरमैन साहब का तो मैं सब बहुत बड़ी शुभचिंतक हूँ और मैं उनसे भी आशीर्वाद चाहती हूँ। प्रणाम सर। मेरी आवाज, प्रणाम। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर, आशीर्वाद चाहिए आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक भगवान के भजन सुनाना चाहती हूँ आप लोग के सामने। इस गुरु पूर्णिमा पे मैं सारे अपने आदरणीय बड़ों को प्रणाम करना चाहती हूँ और उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ जी मैम। ओके मैम, मैं शुरू करूं? हाँ जी प्लीज मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता
मन ही ईश्वर मन से बड़ा न को हो, मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए, इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधा हो, सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना मन की नैन हजार, जब से चाहे मांग ले कोई, जग से चाहे मांग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच शालिनी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तब भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल पाए। तो मैम एक एक ही गीत जिनका है कि एक और है? मैम आप कुछ इनका कह रहे एक गीत और है शायद। हाँ एक जी, सॉन्ग हाँ जी। मेरा और है अपने भाई के लिए। ओके प्लीज मैम, प्लीज गो अहेड। अभी सुनाना है, नेक्स्ट बाद में सुना दूंगी आप। मैम वी आर ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग द इवेंट, तो आप प्लीज अभी सुना सकते हैं। ओके मैम। अब थैंक यू। आने वाले लास्ट वीक में, इस आने वाले वीक में रक्षाबंधन है, तो मैं चाहूंगी कि मैं अपने भाई के लिए भी एक गाना सुनाऊं। उनकी भी लड़की हर्षिता पांडे अभी आई थी यहाँ पे परफॉर्मेंस देने। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। तेरी सांसों की महक खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बहार आती है। एक पल से भी नजरों से तू ओझल ना हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। ओके मैम। फीवर की वजह से मैम सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओके सर, थैंक यू वेरी बहुत मच। सुंदर परफॉर्मेंस थी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो चेयरमैन सर, आप अपना एड्रेस कंटिन्यू करना चाहेंगे? बीच में मैम का परफॉर्मेंस हमने रख दिया।
चेयरमैन सर आप म्यूट हो रखे हैं सर, इफ somebody can unmute. कहना चाहता हूं कि शुरुआत तो हुई थी रामचरितमानस के चौपाइयों से, और जो कहते हैं ना कि खाने का जो मजा है वो स्वीट डिश में आता है। ये दोनों गाने शालिनी ने इतना बढ़िया जो है, एक बहुत ही सोबर तरीके से, और एक तो 1 महीने बाद आने वाला है ये आपका रक्षाबंधन। वो एक भाई जो है अपने भाई के लिए बहन जो है क्या भावना रखती है, उसके साथ इसका समर्पण हुआ। और उस समर्पण में एक बहुत अच्छी भावना ये थी कि आज के भागदौड़ की दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे भाग्यवान होते हैं जिनकी बहनें उनके कलाई पे जो है राखी बांधती हैं, जो कि एक प्रण होता है कि जब कभी भी आप दिक्कत में हो, परेशानी में हो, तो मैं आप पे जो है काम आऊंगा। बहुत अच्छा गीत था। मैं शालिनी को उसके लिए, दोनों गीतों के लिए, इससे पहले वाला भी गीत बहुत ही सोबर था और बहुत ही टचिंग, जिसको कहते हैं ना कि दिल के तार को छू ले, इस तरह का गीत था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब सिमरन आप करें तो इस तरह के गायक जो हैं उनको पहले से ही रोप इन करके रखें, और जैसे ये पेंडेमिक खत्म हो जाए, जब हम लोग की जो है मुलाकात हो, तो उसका सेलिब्रेशन इसी रूप में होना चाहिए। बिल्कुल सर। उससे जो है, इससे बढ़ के और क्या खुशी हो सकती है कि एक महामारी जो है खत्म हो गई और अच्छे दिन आ गए, और उसमें जो है हम भगवान को याद करें, अच्छाइयों को याद करें और अच्छे कर्मों को याद करें। और अच्छे कर्म आप समझते हैं कि ये किसी व्यक्ति विशेष की कोई धरोहर नहीं होती है, ये हर आदमी जो है वो कैपेबल है अच्छे कर्म करने के लिए। उसमें एक देवत्व की भावना होती है जिसको डिवाइन लाइट कहते हैं। उस डिवाइन लाइट से ही जो है एक आदमी जो है उस तरफ बढ़ता है और दूसरों को प्रेरित करके अपने पीछे चलाता है, जिसको आप लीडरशिप में, एक लीडरशिप रोल के रूप में उसको देखते हैं। आप अगर जो देखें भगवान कृष्ण और राम में, भगवान कृष्ण में लीडरशिप रोल था और है, आज भी है, क्योंकि हम पूरा वो सजीव है, सारा चित्रण उसका, चाहे किताब के रूप में हो, ग्रंथ के रूप में हो, या आप कह लीजिए कि वो जो है एपिक का जो इस समय चित्रण हुआ है तमाम धारावाहिक में, तो उससे एक पीढ़ी को जो है शिक्षा मिलती है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है कितनी समृद्ध है और उसके क्या क्या आयाम है जिसको हम अपने जीवन में जो है उतार सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं। भगवान कृष्ण जो है अनुकरणीय नहीं है, ये लोग कहते हैं, क्योंकि 16,000 प्लस रानियां थी उनकी और 8 पटरानियां थी और हर एक के 10-10 बच्चे थे। Everyone had 10 children, you know। एक पूरी फौज थी कहिए, इसीलिए कहा गया कि भगवान कृष्ण अनुकरणीय नहीं है, लेकिन भगवान राम जो है अनुकरणीय है, क्योंकि उनके जीवन में कहीं आपको दाग नहीं दिखाई देगा, बट फॉर वन, एक जगह दाग हमारे हिसाब से, मैं ये फील करता हूँ, एक चिंतक के नाते आप कह लीजिए, एक स्वतंत्र विचारधारा के रूप में
हमारी विचारधारा है कि जो आदमी की इतने बड़े राज्य का राजा महाराजा था है, क्योंकि हम काल्पनिक रूप से अभी भी मानते हैं कि भगवान राम का जो है कभी भी देहांत नहीं होता, वो तो एक रूप में है। यहाँ भगवान हनुमान जी का कभी देहांत नहीं, वो तो है ही हमेशा के लिए, हर युग में। तो जब उन्होंने माँ सीता को निकाला और वन में भेजा, उनके लिए कोई कुटी बना देते, रहने की जगह बना देते, दासियों को रख देते सेवा के लिए, ये नहीं किया, छोड़ दिया बिल्कुल। वो तो संयोग था कि ऋषि उनको मिल गए, वाल्मीकि जी अपने कुटी में ले गए, पाला पोसा उनको, बच्चे दोनों वहीं पे जन्मे, दोनों का नामकरण हुआ, दोनों का शिक्षा हुआ और दोनों बड़े हुए और यहाँ तक बड़े और ताकतवर हुए कि भगवान राम के परिवार को ही चुनौती दे। भरत जी गए, हार गए, लक्ष्मण जी गए, हार गए, शत्रुघ्न जी गए, हार गए, हनुमान जी गए, हार गए। तो जो इतना बलशाली था बचपन में, वो आप सोच सकते हैं कि भगवान का अंश किस रूप में होता। तो ये जो माइनस पॉइंट है भगवान राम के की अनुकरणीय, ये अनुकरणीय नहीं। भगवान राम को चाहिए था कि माँ सीता को ढंग से वहां पे रखते, बच्चे होते जो भी होते वो वहां होते और राज परिवार का पूरा संरक्षण होता। अपने साथ से हटा दिया, दैट्स एनफ। तो ये एक पहलू है। सिमरन, आई डोंट नो, आई हैव क्रॉस्ड माय लिमिट इन टर्म्स ऑफ व्हाट शुड आई से, व्हाट आई शुड नॉट से, क्योंकि हर चीज कहने की नहीं होती स्टेज से, लेकिन फिर भी एक शिक्षित आदमी का ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो उसके मन में जो उचित आवे। तो मैंने इसको अनुकरणीय और उसके अनुकरणीय के संदर्भ में कहा। तो भगवान कृष्ण जो थे वो धरातल से जुड़े हुए थे, धरातल की जो अच्छाइयां बुराइयां सब से जुड़े हुए थे, और भगवान राम जो है वो आदर्श से जुड़े हुए थे, और आदर्श इतना उनके ऊपर हावी हो गया कि वो अपनी स्त्री को ही त्याग दिए, जो कि आज के संदर्भ में, उस समय के भी संदर्भ में ये बहुत तर्कसंगत नहीं लगता है। मैं आपको सिमरन जी और ये जो है पूजन को और सीमा को और सारे स्टाफ को, कॉलेज के DSPSR के, और जो DSPSR फैमिली से बाहर के लोग इसमें योगदान दिए, जिसमें जो है खासतौर से ये जो सत्यम शिवम सुंदरम का जो गीत गाया, ये बहुत ही बढ़िया था। और इस के लिए हर्षिता को और शालिनी को जो है खास तौर से, ये जो दो गीत, एक तो बहुत सुंदर 1 महीने बाद ही आने वाला है रक्षाबंधन का त्योहार, उसको गाया और उस पर ध्यान खींचा। इन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी इस तरह के जो है आयोजन किए जाएंगे, इन सब का सहयोग जो है दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। Thank you so much, sir. So before we move ahead, Chairman sir, on behalf of entire family of DSPSR, I would like to use this platform to extend our heartfelt gratitude towards your constant guidance, sir. Your words have always pushed us to work with extra effort. Your blessings enrich our lives, sir. So happy Guru Purnima, sir. Now I would like to invite Professor Dr. Seema Singh ji to deliver the vote of thanks. Thank you, Simran ma'am. Am I audible? Yes, 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 yes. Go ahead. Okay.
A very good evening, Honorable Chairman sir. हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलिए, हिंदी में। आप सबको अगर बहुत सिमरन कौर हिंदी में बोल सकती हैं, जो कि हिंदी हार्टलैंड में पैदा नहीं हुई हैं, आप तो हिंदी हार्टलैंड में पैदा हुई हो, शिक्षा दीक्षा भी वहाँ काफी दिन तक हुआ है, तो आप क्यों अंग्रेजियत में पढ़ी हो? ये अपनी भाषा है, अपनी जबान है, इसमें बोला करो। जहाँ रोटी का सवाल आएगा, जैसे आपने बुलाया था एक एड्रेस करने के लिए एक अपने अलमनाई को 3 बजे, तो वो चलो कॉर्पोरेट लैंग्वेज जो है, रोटी की भाषा हम कहते हैं उसको, लेकिन बाकी समय तो आप हिंदी का ही उपयोग किया करो, उससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। बोलिए। सर धन्यवाद सर। मैं हिंदी में ही अपनी जो है मंतव्य रखती हूँ यहाँ पे। तो आप सबको सादर भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सिंह आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी। विशेषतया चेयरमैन सर को, सभी अतिथि जो अपना यहाँ पे योगदान दिए, और DSPSR के जितने भी सदस्यगण हैं, परिवार है, सभी सदस्यों को नमस्कार है मेरा, और सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे एक श्लोक है संस्कृत में, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसका मतलब होता है कि जो खैर हमारे एक बच्चे ने बहुत अच्छे से बताया है ऑलरेडी कि मतलब गुरु का जो है वो भगवान के से पहले है, क्योंकि गुरु भगवान के बारे में जो बताता है वो गुरु ही होता है। और ये श्लोक है जिसका अर्थ होता है कि जो गुरु है उसका स्वरूप ब्रह्मा जैसा है। गुरु जो है वो पालनहार है विष्णु भगवान की तरह। गुरु जो है वो आज के डेट में बोलते हैं कि वो जो है मतलब संरचना भी करते हैं और उसका संहार भी करते हैं भगवान शिवा के जैसे। तो गुरु जो है वो साक्षात जो होता है वो सुप्रीम पावर होता है, मतलब प्योर पावर या शक्ति है। और ऐसे सारे गुरुओं को मेरा नमस्कार है। मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी सिमरन कौर जी को और पूजन बाटला जी को, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम जो है आयोजित किया गुरु पूर्णिमा के अवसर पे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पल्लवी सिंह को, जिन्होंने अपने बहुत ही अच्छे शब्दों से टीचर्स को, DSPSR के शिक्षक गण को संबोधित किया, बताया, अपने विचार रखा। और आपको मैं आशीर्वाद देना चाहूंगी पल्लवी कि आप बहुत अच्छा कीजिए, आप बहुत अच्छा किए हो इस सेमेस्टर में, और आगे इसी तरह से जो है लगातार अपनी जो परफॉर्मेंसेस है उसको बहुत अच्छा रखिए। मैं सारे जो लोग यहाँ पे अपने परफॉर्म किए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहले श्रुति मित्तल हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो अपना कविता पाठ की। हर्षिता पांडे जी ने बहुत अच्छा भजन गाया। आयुष ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से बताया कि एक जो शिष्य होता है उसके जीवन में एक गुरु का क्या महत्व है, उसके जो है रोल को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, वर्णन किया। शिवम पाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेशनशिप बताया गुरु और शिष्य के बीच का। आशीष शर्मा जी ने भी अपने जो विचार रखे गुरु के लिए वो बहुत ही उम्दा थे। सापेक्ष जी ने भी अपने विचार टीचर्स के लिए जो रखा बहुत ही सही तरीके से रखा आपने, और बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे बच्चे जो हैं इतना सोचते हैं हम सब के लिए, इतनी रिगार्ड और रिस्पेक्ट रखते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म से कि आप लोग हमेशा ही, गुरु का मतलब ये नहीं है कि जिसने आपको पढ़ाया सिर्फ वो, आपने जिनसे भी कुछ सीखा है वो सब आपके जीवन में उतना ही महत्व रखते हैं। उन सबका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। एक गुरु को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होता है, एक सम्मान से ज्यादा, इज्जत से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। पूजन बाटला मैम,
आपने बहुत ही अच्छा गाया। मैं तो खैर पहली बार सुनी हूँ, आपको गाते हुए देखा मैंने, सुना आज। बहुत अच्छा गाया आपने। शालिनी त्रिपाठी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी तबीयत खराब होते हुए भी आपने भजन भी बहुत सुरीला गाई और बहुत ही अच्छा भाई बहन का जो है रिश्ते के ऊपर आपने गाना भी गाया, जो कि एग्जैक्टली देखा जाए तो 1 महीने के बाद श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो सबके दिल में कहीं ना कहीं जिनके भाई उनके पास नहीं है, उनको भाइयों की याद दिला दी आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे चेयरमैन साहब के लिए तो क्या ही बताएं, उनके जो ज्ञान है उसको सुनना और पालन करना ही, मतलब सुनना ही बहुत बड़ी बात है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं सर कि आप जितना कहते हैं हम लोग उसका पालन भी करें, पालना भी करें, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है। मतलब आजकल तो ज्ञान का जो है कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब जहां देखो वहां ज्ञान बढ़ रही है। मतलब व्हाट्सएप देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, या कोई भी किताब पढ़ लीजिए, इतने सारे ज्ञान हैं। और मैं हमेशा ये विश्वास करती हूँ सर कि ज्ञान जितना अर्जित करें उसका पालन भी करें, उसको एक्शन में भी लेके आए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि एक एक चीज जो आपसे सीख पाती हूँ उसको मैं पालन करूँ, अपने जीवन में उसको उतारूं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं आपको चरण स्पर्श करती हूँ सर। आपके समय समय पे जो आपने मुझे गाइडेंस दिया उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू कहना जो है वो पूरा नहीं करता। आपने जितना योगदान दिया है मेरे जीवन में, मेरे को यहाँ तक लाने में, तो बस भगवान से दुआ करती हूँ कि आपकी बहुत बहुत लंबी उम्र हो और आप हमेशा ही अपने छत्र छाया में हम सबको समेटे रहें, यही मेरी दुआ रहेगी। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी DSPSR के सारे IT टीम को, IT एक्सपर्ट्स को, डॉक्टर शिप्रा सिंह, दीप बिस्वास जी, मनप्रीत सिंह जी, डॉक्टर विनय पांडे, मिस्टर अविनाश पाल, मान्या जी, राधिका सेठी जी। साथ में आप मौन धारकों को भी धन्यवाद दे दो, मौन धारक जो किए हुए हैं। हाँ, जो लोग मौन धारण में हैं उनका भी सहयोग है यहाँ पे। और पता आप नहीं वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मौन धारकों को सबकी तरफ से जी सर। तो सारे लोग जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं यहाँ पे आज नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो बोले नहीं, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए क्योंकि वो मौन धारण पे हैं। बट आई एम श्योर कि मतलब उनका जो है, उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है और वो जरूर इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। और हमारे प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने भी साइलेंस पे हैं अभी, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर रहे हैं वो लोग, एडवांस कोर्स। उसमें 3 दिन का साइलेंस होता है, मौन व्रत होता है। और इंटरनल जर्नी जो होती है वो डिवाइन जर्नी, उसके पे होते हैं वो लोग। तो उन लोगों का अप्रत्यक्ष रूप में उनका जो आशीर्वाद है उस सबके लिए उनका धन्यवाद। और आप सबके सहयोग से ही ये पूरा कार्यक्रम सफल हो पाया है। आखिरी में मैं सबको ही बधाई देना चाहूंगी, पूरे DSPSR टीम को, और थैंक्स कहना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी जो आप सबने इसको इतना अच्छा बनाया। सारे अतिथियों का धन्यवाद, सारे स्टूडेंट का जिनका अगर किसी का नाम रह गया हो और किसी भी टीचर का नाम रह गया हो, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सबके सहयोग से ये सारा कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। तो इसी के साथ मैं ये जो हमारी इस कार्यक्रम की जो संचालक हैं सिमरन कौर जी, उनको मैं देना चाहती हूँ आगे के प्रोसीडिंग्स के लिए। सिमरन मैम, आप देख लीजिए आगे कैसे क्या करना है। Thank you so much, Seema ma'am. So again, I would like to extend a very warm thank you to all the participants who have been generous enough to attend the entire event. And on this note, we are closing this event. Thank you so much for staying with us. Thank you.